Good morning, dear students. Hello, this is Neha, your course teacher, and our course title is Principles of Agronomy, and course number is EAS-5111. Okay, so what we were discussed in our previous lecture is irrigation. Okay, so today again we will discuss about the time and method of the irrigation. Okay, so let us see the irrigation method. As I told you, we have three irrigation method, which is surface, subsurface and pressurized irrigation. Okay, and there are some criteria for selection of irrigation methods. Okay, so ये हम देख चुके हैं. So this is the classification of irrigation. So basically this is the flow chart for the irrigation. This is a very simple flow chart for irrigation methods. Okay, so as you can see that we have four category for the method of the irrigation. Okay, so first method is what? Surface irrigation. Then after we have subsurface irrigation and the sprinkler irrigation and the drip irrigation also. Okay, so last two irrigations are comes under the category of what? Micro irrigation. Okay, so as we know that to this category we know that the sprinkler and drip irrigation is also known as micro irrigation, as well as this is the comes under the category of what? This is the these are the some modern techniques of irrigations. Okay, तो कभी भी कोई एक्सटर्नल आपसे पूछता है या कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशंस मेथड्स, तो यू शुड आंसर दैट पर्टिकुलर दैट स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड माइक्रो इरिगेशंस फॉर दैट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशंस. ओके, इनको हम माइक्रो इरिगेशंस के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो surface irrigations has been divided into three category, or we can say that the surface irrigation has three types. Okay, so first is flooding, and the second is furrow method, and the third one is contour method. Okay, and the flooding method is also divided into two category, which is wild flooding and controlled flooding. ठीक है, एज नेम सजेस्ट व्हाट इज वाइल्ड फ्लडिंग, मतलब बस पानी आपके फील्ड पे छोड़ दिया रहना. एंड व्हाट इज कंट्रोल फ्लडिंग, एक कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करना या चैनल्स वगैरह बनाना फ्लडिंग के थ्रू. ओके, सो कंट्रोल फ्लडिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द 6 category. So free flooding, contour, lateral, border strips, check flooding, basic flooding and zigzag floodings are the comes under the category of control flooding. Okay, so again we have the different methods of the irrigation. Okay, so this is the complex irrigation flow chart. Okay, and this is very important, you need to remember this chart also. Okay, so surface, subsurface, sprinkler and drip is also known as localized irrigation also. Okay, so drip and irrigation is finally what can we say that some micro irrigation. किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं कि माइक्रो इरिगेशंस के अंदर वो आता है. ओके, फिर अगेन हम देखते हैं कि सरफेस इरिगेशन में 3 कैटेगरी है: बॉर्डर मैथड, फरो मैथड एंड चेक बेसिन मैथड. ठीक है, एंड बॉर्डर इरिगेशन को बेसिकली टू कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है. एक होता है स्ट्रेट बॉर्डर मैथड एंड द सेकेंड वन इज contour border method. And furrow irrigation also has been categorized in 2 categories, which is deep furrow and corrugation. This is very important irrigation methods. Okay, then check basing is divided into 3 category, which is rectangular, contour and ring. Okay, then sprinkler is also divided into 2 category, which is rotating head and perforated pipe. And again the drip or localized irrigation has been divided into 2 category, which is earthen pot method and double wallet pot jalpritry. Okay, then deep furrow and corrugation is also divided into 2 category, which is known as straight or contour irrigation methods, and the straight method is divided into 2 category, which is level and graded. Okay, so finally we have the classification of irrigation.
फॉर द फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट के लिए हमने इस तरीके से रेडी करा हुआ है। ये क्या होगा, इजी टू रिमेंबर होगा, आपको याद करने में बहुत ही इजी होगा। ओके, सो एनीवेज अब देखते हैं हम डिटेल में कि क्या होता है। ठीक है, सो सब सरफेस इरिगेशन, सो ओल्डेस्ट मैथड अबाउट 4000 ईयर बैक, मतलब जब से किसानी हो रही है, खेती हो रही है, तब से ये सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम जो है वो आ रहा है। सो बेसिकली द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मैथड, 90% ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टोटल इरिगेटेड एरिया इज अंडर दिस मैथड। इन USA ऑल्सो 66% इज बाय सरफेस इरिगेशन। ठीक है, मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या होता है, 66% इरिगेशन इससे किया जाता है, जो कि वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है, आपके कंट्री है आप ही के टाइम पे, है ना। और हमारे इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में तो 90% इरिगेशंस आज भी जो होते हैं वो सरफेस इरिगेशंस होते हैं। ठीक है, सो बहुत ही कन्वीनियंट मैथड है ये, बहुत ही इजी मैथड्स होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, सरफेस इरिगेशन का यूज़ करते हैं। कन्वीनियंट के साथ साथ ये क्या है, बहुत ही चीप मैथड है। ठीक है, मतलब सस्ते दामों में या सस्ते रिसोर्सेज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस मैथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर लो टू मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन रेट्स एंड लेवल्ड लैंड एंड हैविंग लेस दैन 2 to 3% स्लोप। ठीक है, मतलब पहले तो ये जिनका इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत अच्छा होता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर टू द ग्राउंड सरफेस टूवर्ड्स द अंडरग्राउंड सरफेस, दैट इज़ नोन एज इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। ओके, सो हमेशा ये याद रखेंगे। तो उस जगह पे, और जो लेवल्ड मतलब पैरेलल लैंड होते हैं, ठीक है, जिगजैग लैंड ना हो, ठीक है, ऊपर नीचे जो हो, अप एंड डाउन ऐसे इस टाइप की जो सॉइल्स हो, वहाँ पे नहीं, जो लेवल्ड सॉइल होते हैं वहाँ पे हम सरफेस इरिगेशन का यूज़ करते हैं, जहाँ पे 2 to 3% से कम स्लोप होता है। ठीक है, मतलब जिगजैग नहीं होता, पैरेलल होता है। So it is a labor intensive. Okay, then the surface is grouped as 3 category: border irrigation, check basin and furrow irrigations. Okay, and the border has been again classified into 2 category, which is straight and contour method of the irrigation, as I told you. And this is the image which is I'm showing you, that सरफेस इरिगेशन एंड द बॉर्डर इरिगेशन। देखिए ये जो लास्ट में है, राइट हैंड साइड से आप देखेंगे, राइट्स में जो बॉर्डर डिचेस लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक ऐसा बॉर्डर फॉर्म करते हैं हम फील्ड पे। ठीक है, यहाँ पे सारे इरिगेशंस को एक साथ बता दिया गया है कि किस तरीके से होता है। तो इमेज से आपको क्लियर हो जा रहा है कि फरो, देखिए एक हमारे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में जो दिख रहा है फरो मेथड, क्या करते हैं हम, रिज एंड फरो बनाते हैं और फरो में पाइपलाइन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू सरफेस में इरिगेशन वाटर जो है वो लेवल्ड जो है वो स्प्रेड होते रहता है हमारे क्रॉप तक या फरो और रिज तक। ठीक है, फिर उसके बाद बॉर्डर स्ट्रिप्स, मतलब देखिए एक बॉर्डर प्रॉपर जो फील्ड्स होते हैं उनको एक बॉर्डर में डिवाइड करते हैं और उसके थ्रू हम चैनल्स बना के इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। देन कोरिगेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ठीक है, उसमें देखिए आप एक पतली पतली कैनल बनाते हैं। जनरली ये वेजिटेबल्स या फ्लावरिंग जहाँ पे होती है ना, मतलब जहाँ पे फ्लावर्स क्रॉप लगते हैं, फ्लोरिकल्चर जो होता है ना, वहाँ पे इस टाइप के इरिगेशंस का हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड द चेक बेसिन, चेक बेसिन में क्या होता है, एक इनलेट बनाते हैं हम जहाँ से पानी जाता है, और एक आउटलेट सिस्टम बनाते हैं जहाँ से पानी एक इनलेट से एक फील्ड में पहुँच के उसका जो आउटलेट होता है वो दूसरे फील्ड के लिए इनलेट होता है। ठीक है, दैट सिस्टम इज़ नोन एज चेक बेसिन सिस्टम। समझ आया आपको? मतलब हम क्या करते हैं, फील्ड को अलग अलग क्या करते हैं, कैटेगरी में या अलग अलग बॉर्डर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसमें इनलेट और आउटलेट चैनल बनाते हैं। ठीक है, मतलब इनलेट मतलब जहाँ से पानी जाता है, आउटलेट मतलब जहाँ से पानी वापस से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जो एक फील्ड का इनलेट होता है, एक फील्ड में जब फिल हो जाता है वाटर, इरिगेशन हो जाता है, इनफ वाटर हो जाता है, तो एक्सेस जो वाटर है उस फील्ड के आउटलेट से दूसरे फील्ड में पहुंचता है। तो जो फर्स्ट फील्ड का आउटलेट होता है वो सेकंड फील्ड के लिए क्या होता है, इनलेट होता है। ठीक है, उस टाइप का जब हम इरिगेशन करते हैं उसको हम चेक बेसिन कहते हैं। ओके, देन अगेन चेक बेसिन हैज़ बीन
divided into two categories which is rectangular and contour और ring is also known as contour. ठीक है, contour मतलब एक सीढ़ी नुमा स्टेयर के रूप में जब हम इरीगेशन करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, हिल्स रीजन में बेसिकली कंटूर फार्मिंग करते हैं, मतलब सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। आप देखेंगे कि आप केरल चले जाएं, है ना, हिमाचल साइड चले जाएं या आसम में चले जाएं तो वहाँ पे टी जो होती है, चाय की जो खेती होती है वो कंटूर फार्मिंग होती है। वहाँ पे पैडी की जो खेती होती है वो भी कंटूर फार्मिंग होती है, क्योंकि हिल्स रीजन पे स्लोपी एरियाज होते हैं, ठीक है। और कंटूर फार्मिंग कंटूर इरीगेशन जो है वो चेक बेसिन के अंडर आते हैं, ठीक है। एंड द फरो इरीगेशन इज क्लासिफाइड एज डीप फरो एंड कॉरुगेटेड फरो, जैसे मैं आपको पहले इमेज में बताया मैंने आपको। सो दिस मे बी अगेन स्ट्रेट और कंटूर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड लेवल्ड एंड ग्रेडेड एज देयर एलिवेशन। ओके, सो फर्स्ट which is border irrigation. Okay, so let us discuss in detail what is the border irrigation. So the land is divided into number of long parallel strips called border. मतलब एक स्ट्रिप्स हम फॉर्म करते हैं, मतलब स्ट्रिप्स मतलब क्या होता है, एक लकीर खींचना होता है। स्ट्रिप्स मतलब एक लाइन बनाते हैं हम स्ट्रिप्स के रूप में, और क्या करते हैं, फरो बनाते हैं पैरेलल, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब समांतर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के एक समान हम स्ट्रिप्स बनाते हैं। और वहाँ पे जब हम इरिगेशन करते हैं तो उस टाइप के इरिगेशन को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर इरिगेशन कहते हैं। ओके, सो दीज बॉर्डर्स आर सेपरेटली बाय रो एंड लो रीजेस. Okay, the border strips has a uniform gentle slope in the direction of irrigation. Then this is the border irrigations image. तो देखिए वाटर फ्लो हम कर रहे हैं, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहे हैं, और जो स्लॉप बना हुआ है, जैसे फील्ड हमने डिवाइड करा हुआ है, बॉर्डर हमने बनाया हुआ है, इस जो अपर साइड में जो डार्क कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो डिच है, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है, मेन फील्ड पे वाटर फ्लो होता है। मतलब हम क्या करते हैं, स्ट्रिप्स में वाटर फ्लो करते हैं, जो हमने बॉर्डर बनाया हुआ है उसमें हम वाटर फ्लो करते हैं, उसके जरिए जो है वो अलग अलग फील्ड पे वाटर जो है इनलेट होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इरिगेशंस को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर इरिगेशन कहते हैं। और ये जो बॉर्डर इरिगेशन है वो सरफेस मेथड ऑफ द इरिगेशन के अंडर कैरेक्टराइज्ड है या कैटेगराइज्ड है, ठीक है। Then again each strips is irrigated independently by turning the water in the upper end. The water is spread and flows down the strip in a sheet confined the border ridges. Then this is their suitability. क्या सुटेबल है फॉर दी बॉर्डर इरिगेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना बस याद रखना है कि जो बॉर्डर इरिगेशन होता है उसमें हम फील्ड को डिवाइड करके क्या करते हैं, प्रॉपर चैनल बनाते हैं, स्ट्रिप्स बनाते हैं आप कह सकते हैं, और उस स्ट्रिप्स में हम क्या करते हैं, डिच मतलब क्या होता है, मेड़, ठीक है, जो मेड़ बनी होती है, तो उस फ्लो में स्ट्रिप्स में हम इरिगेशन वाटर मतलब फ्लडिंग करते हैं, और वहाँ से जो भी वाटर होते हैं वो फील्ड में प्रॉपर चैनल के थ्रू क्या होते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। तो वाटर फ्लो क्या है, स्ट्रिप्स के जरिए जब मेन फील्ड पे होता है, दैट इज कॉल्ड द बॉर्डर इरिगेशन। ओके, एंड सुटेबिलिटी क्या है, सुटेबिलिटी और टू सॉइल हैविंग मॉडरेटली लो टू मॉडरेटली हाई इनफिल्ट्रेशन रेट्स. It is not used in coarse sandy soil that have very high infiltration rate, and also in heavy soil having very low infiltration rate. So as we can see that, we can say that the border irrigation is used for the having moderate infiltration rates of the soil or crop also. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, नहीं ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट हो, जो कि सैंडी सॉइल में होती है। सैंडी सॉइल में आप मतलब सैंड में आप पानी डालते हैं तुरंत पानी सोख लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो सैंडी सॉइल में भी हम नहीं कर सकते। और जो क्ले सॉइल होते हैं, जो बहुत ही चिकनी मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, जिसमें पोर स्पेस बहुत कम होते हैं, तो उस टाइप की जो सॉइल है जिसमें वेरी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है, बहुत ही धीरे धीरे स्लोली इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है, तो वहाँ पे भी हम बॉर्डर इरिगेशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन सुटेबल टू इरिगेट ऑल क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक wheat, barley, fodder crops and legumes crops, and
नॉट सुटेबल फॉर राइस। ठीक है, राइस का बेसिकली हम क्ले सॉइल यूज़ करते हैं, सैंडी लोम या क्ले सॉइल यूज़ करते हैं, जनरली हम क्ले सॉइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्रकार की क्ले सॉइल इज़ अ काइंड ऑफ चिकनी मिट्टी, है ना, उस टाइप का होता है जिसमें वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट जो है थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सैंडी लोम सॉइल। ठीक है, तो इस वजह से हम वहाँ पे सुटेबल नहीं है वो हमारे राइस क्रॉप के लिए। ठीक है, सो ये जो सुटेबल किसके लिए, वीट के लिए, बार्ली के लिए और फॉडर क्रॉप के लिए एंड लेग्यूम क्रॉप के लिए। लेग्यूम क्रॉप मतलब पल्सेस हो, जितने भी पल्सेस क्रॉप हैं दे आर कम्स अंडर द लेग्यूम्स क्रॉप। ओके, then we have advantages for border irrigation because everything has pros and cons, but so border irrigation have also the advantages or merits we can say. So border irrigations या border ridges can be constructed with simple farm implements like bullock drawn, ए फ्रेम रिच और बंड फॉर्मर। ठीक है, सो इसको हम जब बनाते हैं तो बहुत ही ईजिली जो भी हमारे पास इम्प्लीमेंट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक अलग से हमें टेक्निकल इम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी हम फार्म टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसके थ्रू क्या होता है ये हम फॉर्म कर सकते हैं, बॉर्डर या स्ट्रिप्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बुलक कार्ट जो होते हैं, बुलक कार्ट से हम फॉर्म कर सकते हैं, ट्रैक्टर से हम फॉर्म करते हैं, वो ईजिली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही चीप होते हैं। ठीक है, and the second advantage is labor requirement in irrigation is reduced as compared to conventional check basin method. ठीक है, and then third is uniform distribution of water and high water application efficiencies are possible. Large irrigation streams can be efficient use and the adequate surface drainage is provided if outlets are available. ठीक है, जैसे चेक बेसिन में हमने देखा कि चेक बेसिन में एक प्रॉपर आउटलेट बना हुआ होता है। सिमिलरली हमें बॉर्डर इरिगेशन में इनलेट के साथ साथ आउटलेट भी फॉर्म करना होता है, आउटलेट सेकेंड फील्ड के लिए। ठीक है, या बाहर निकालने के लिए एक कैनल या नालियाँ बनानी पड़ती है जिससे प्रॉपर जितना अवेलेबल है, जितना रिक्वायरमेंट है वाटर उतना रिक्वायर हमारे अवेलेबल हमारे क्रॉप को हो जाए। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर वहाँ पे रह गए वो आउटलेट चैनल के जरिए क्या हो जाए, बाहर हो जाए, ड्रेन्ड आउट हो जाए। ठीक है, तो एडिकेट सरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड इफ आउटलेट्स आर अवेलेबल। ओके, तो इसका मतलब यही होता है। देन द लार्ज इरीगेशन स्ट्रीम्स कैन बी एफिशिएंटली यूज, मतलब अगर आपने बहुत ही बड़े एरिया में इरीगेशन करा हुआ है, क्रॉप लगाए हैं, बहुत हेक्टेयर में हमने क्रॉप लगाया, ठीक है, तो हमें उस कंडीशन पे एक प्रॉपर चैनल बना देना चाहिए, स्ट्रिप्स फॉर्म कर देना चाहिए और उसमें पानी दे देना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी एफिशिएंट यूज़ होता है, मतलब हमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट जो है वो हमारा कम आता है। एंड द लेबर रिक्वायरमेंट इन इरीगेशन इज रिड्यूस एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल चेक बेसिन। चेक बेसिन में एक प्रॉपर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनलेट और आउटलेट जो इनलेट और जो आउटलेट हमने जो फील्ड पे बनाया हुआ होता है उसको प्रॉपर उसकी देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कि आपको जैसे ही अगर आप आउटलेट पहले ही खोल दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा पानी बाहर ही निकल जाएगा। तो पहले आपको आउटलेट को क्लोज़ करना होता है, पहले एक फील्ड भर जाता है, उसके बाद आप आउटलेट को ओपन करते हैं ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो दूसरे फील्ड पे पहुंच जाए। ठीक है, तो कन्वेंशनल चेक बेसिन में ये जो है होता है, जो कि लेबर रिक्वायरमेंट उसमें होता है, मतलब एक आदमी चाहिए होता है उसको क्या करने के लिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए उसकी। ठीक है, तो वो क्या होता है, बॉर्डर इरीगेशन में नहीं होता। आप एक बड़े एरिया में अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रिप्स बना दीजिए, वहाँ पे आप इरीगेशन दे दीजिए, वो प्रॉपर एक चैनल पे पहुँचता रहेगा। बस आपको एक आउटलेट चैनल बनाना पड़ेगा जहाँ से वो पानी है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर है, वो क्या होगा, बाहर निकलता रहेगा। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट द इरीगेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इरीगेशंस एंड बॉर्डर इरीगेशन ऑल्सो. Okay, so in our next lecture we will discuss about the check basin method and furrow method, like सारे irrigations को हम डिटेल से पढ़ेंगे. So this is a very important chapter. Okay, so always remember all the things about this chapter. So आज के लिए बस इतना ही. So thank you very much and till then be safe, take care. Thank you.